Now choose the correct answer. In question 1-3, which of the following is not a member of the solar system, that is constellations, right? So option C, constellations are not a member of the solar system. Which of the following is not a planet of the sun, and that is option A, Sirius, right? Then third, phases of the moon occur because we can see only that part of the moon which reflects light towards us, right? Our distance from the moon keeps changing. The shadow of the earth covers only a part of moon surface, and D, the thickness of the moon's atmosphere is not constant. So option A is the correct. We see only that part of the moon which reflects light towards us, क्योंकि जो मून है वो तो कंप्लीट ही होता है, बट हम लोग उसकी जो भी फेजेस देख रहे हैं तो वहाँ पर उतना ही रिफ्लेक्शन हुआ है, इसी वजह से वो हमें ब्राइट दिखता है, राइट? सो दीज आर द आंसर्स हियर. Now fill in the blanks. The planet which is farthest from the sun is Neptune. So A answer is Neptune. Then B, the planet which appears reddish in color is Mars, right? A group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as constellation, right? Constellations. Then D, a celestial body that revolves around a planet is known as satellite. Shooting stars are not actually stars, so E, stars, क्योंकि वो एक्चुअल में स्टार्स है ही नहीं, बट उनको नाम दिया गया है शूटिंग स्टार्स. एंड F, that asteroids are found between the orbits of here orbits between Mars and Jupiter, right? तो एस्ट्रॉइड्स दोनों ही प्लेनेट के बीच होता है, मार्स और जुपिटर के बीच, राइट? नाउ ट्रू एंड फॉल्स, राइट? A, pole star is a member of the solar system, right? So that is false. B, Mercury is the smallest planet of the solar system. It is true. Uranus is the farthest planet in the solar system. It is false, right? It is Neptune. Then D, InSat is an artificial satellite, right? It is true. It is artificial. Then E, there are 9 planets in the solar system. No, there are only 8 planets, so it is false. And F, constellation Orion can be seen only with a telescope, so it is false. No, it can be seen directly with our naked eye sometimes, right? Now match the items in column A with one or more items in column B. So first, inner planets. तो inner planets, तो पहला होगा अर्थ, राइट? और दूसरा है मार्स. ये दोनों इनर प्लैनेट्स कहेंगे हम लोग. उसके बाद आता है आउटर प्लैनेट्स, तो वो है हमारा सैटर्न. सैटर्न बाहर की ऑर्बिट्स में है. फिर कॉन्स्टेलेशंस, तो एक तो ग्रेट बेयर एंड अनदर इज एफ, ओरियन, राइट? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट कौन सा है? तो मून खुद है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आंसर आएगा डी, राइट? तो ये उनके आंसर्स. Now, in which part of the sky can you find Venus if it is visible as an evening star? So, answer is west side of the sky. वो west side मिलेगा, right? तो आंसर है वेस्ट साइड ऑफ द स्काई. It can visible as an evening star. Then 8th one, name the largest planet of the solar system. तो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो है हमारा जुपिटर, राइट? दैट इज लार्जेस्ट प्लेनेट, सो 8 का आंसर होगा जुपिटर. देन 9th, व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? नेम एनी 2 कॉन्स्टेलेशंस, राइट? सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स मेक्स सम डिजाइंस, दैट डिजाइन आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. फर्स्ट कॉन्स्टेलेशन इज Ursa Major, and second constellation, that is Orion.
right? तो this Ursa Major and Orion made up of stars, star structures, combination of stars, right? Then 10th, draw sketches to show the relative position of prominent stars in Ursa Major. तो पहले मैं उसको ड्रॉ करूंगा, उस ऊर्जा मेजर को, तो पहले उसके पॉइंट्स बना देता हूँ। ये स्टार्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, राइट? तो ये स्टार्स है, वो 7 स्टार का बना होगा, तो ऊर्जा मेजर है 7 स्टार का, तो ये हो गए टोटल 7 स्टार। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो एक पैटर्न बनेगी, उसको हम लोग ऊर्जा मेजर बोलेंगे। सो दिस इज ऊर्जा मेजर। और अब मैं ओरियन बनाने जा रहा हूँ। सो ओरियन में एक तो 3 स्टार अपर होंगे, फिर बेल्ट बनेगा 3 स्टार का, और फिर लास्ट में वापस 2 स्टार का, राइट? तो यहाँ से अगर उन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। सो दैट इज ओरियन शेप, राइट? ऊर्जा मेजर एंड ओरियन शेप। सो दीज आर कॉन्स्टेलेशंस। नाउ 11th, name 2 objects other than planets which are members of solar system. तो first is comets and the second one is asteroids. So these are the members of our solar system. Now explain how you can locate the pole star with the help of Ursa Major. So if we are having Ursa Major, right? So according the end of the Ursa Major there is 2 stars, right? जो 2 स्टार है एंड पे ऊर्जा मेजर के, वो 2 स्टार को अगर हम लोग ध्यान में ले और एक लाइन एक्सटेंड करें उसके 5 टाइम्स जितनी, तो एक लाइन को हमें एक्सटेंड करनी है 5 टाइम्स जितनी, और फिर 5 टाइम्स जितनी एक्सटेंड करके वो जो भी आगे स्टार हमें मिलने वाला है वो हमारा पोल स्टार होगा, राइट? देन डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव? सो आंसर इज नो, all stars are not moving because of motion of earth. It is seen that all stars are moving, but actually earth is moving, that's why it is seen stars are moving, right? Then 14, why is the distance between stars expressed in light years? What do you understand by the statement that the star is 8 light years away from the earth, right? तो लाइट ईयर में हम लोग क्यों उसको कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में नहीं लिख सकते हैं? तो किलोमीटर में अगर लिखेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, जैसे कि 6.4 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में तो बहुत ही बड़ा हो गया डिस्टेंस, तो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू राइट इन किलोमीटर, बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ रही है हमें। तो लाइट ईयर में अगर लिखेंगे तो वो इजी रहेगा। कैसे? मान लो कि एक स्टेटमेंट है कि स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि एक स्टार को अर्थ तक पहुंचने के लिए लाइट स्पीड से जाना पड़ेगा। तो अगर वो लाइट स्पीड से जा रहा है, लाइट की स्पीड हमें पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो स्टार लाइट की स्पीड से अर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको 8 साल लगेंगे अर्थ पे पहुंचने के लिए। फिर से, अगर 8 लाइट ईयर्स है, राइट, एक डिस्टेंस है स्टार का अर्थ के बीच का डिस्टेंस 8 लाइट ईयर्स, तो उस स्टार को लाइट की स्पीड से जाने में 8 साल लग जाएंगे, इसी को बोलते हैं 8 लाइट ईयर्स। देन 15, द रेडियस ऑफ जुपिटर। जुपिटर का रेडियस है 11 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर जे इज इक्वल टू 11 आर ई। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ, मतलब कि हमें फाइंड करना है वी जे अपॉन वी ई, ये फाइंड करना है हमें, राइट? सो क्वेश्चन मार्क। So first of all Vj, what is Vj? Vj is 4/3 pi Rj cube and Ve is equal to 4/3 pi Re cube, right? अब Rj का रिलेशन हमें मालूम है तो वो इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर। तो Vj is equal to 4/3 pi
और यहाँ पर आ जाएगा 11RE⁻3। अब ये जो 11 है, 11 का भी क्यूब करना है, तो वो आंसर मिलेगा हमें, वो मिलेगा 1331 इंटू, अब मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई RE, राइट, ये है हमारा RE⁻3। तो VJ इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1331, और ये जो पूरी वैल्यू है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू VE, VE जितनी है तो यहाँ पर VE लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब फाइंड करना है ये रेशियो, तो VE को नीचे ले जाओ, तो VE इज इक्वल टू VJ अपॉन VE इज इक्वल टू, आंसर इज 1331। सो यही रेशियो होगा जुपिटर के वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम के बीच, राइट। नाउ बोजो मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ द सोलर सिस्टम, इज द स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्ट इट, ओके। तो पहले तो यहाँ पर ये चेंज है कि यहाँ पर मार्स और दूसरा वीनस, मार्स और वीनस को इंटरचेंज करना है एक दूसरे में, दोनों की प्लेस इंटरचेंज करनी है, तब वो करेक्ट होगा। और यहाँ पर दूसरा कि ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है स्टोन्स की लाइन, राइट, बड़े बड़े स्टोन्स है यहाँ पर जो कि घूम रहे हैं, वो मार्स के बाद आएंगे, यहाँ पर आने वाले हैं, जो मैं राउंड कर रहा हूँ ना उस ऑर्बिट पे ये पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पर आएगा। और दूसरी चीज़ कि नेपच्यून और यूरेनस को इंटरचेंज करना है, ये दोनों भी एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तब ये पूरा स्केच हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 3 गलतियाँ हैं, एक तो मार्स वीनस उन दोनों के इंटरचेंज करना है, और ये जितने भी स्टोन्स है जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दिस आवर सोलर सिस्टम, वो मार्स के बाद आएगा तुरंत। तो यहाँ पर मैंने सर्कल भी किया हुआ है, राइट, तो ये सर्कल है उसका। और यूरेनस और नेपच्यून दोनों की भी प्लेस को इंटरचेंज करना है, तब ये स्केच करेक्ट होगा।